अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम बैक टू अवर पॉडकास्ट। आज हम एक और बहुत ही अमेजिंग क्रिएटिव डायरेक्टर से बात करेंगे, शहाब खान। आप एज अ क्रिएटिव डायरेक्टर इंडस्ट्री में काम कर चुके हैं फॉर मोर देन 20 years नाउ, एंड लकीली वी विल हैव अ वेरी फिलोसफिकल डिबेट टुडे बिकॉज जो वाइब है वो कुछ इस तरह की सेट हुई है। थैंक Yeah, यू सो मच फॉर योर टाइम, सर। you're welcome. Thank you for inviting me. So first of all, if you can give a little introduction that how you got into this industry and what's your relationship with advertising now? I am from Peshawar. I was born there, but I mean, बचपन कभी पाकिस्तान में कभी बाहर कभी Okay. इधर, तो it was like a ping pong, so to speak. लेकिन I think the सारी हमारी फैमिली के अंदर this थोड़ा सा creative या Hmm. art का एक streak थी. Okay. Um, but I mean, खैर we go back to my grandfather और उनको अगर हम देखें तो उस वक्त तो any kind of art still बहुत सारी चीज़ों में it's looked down upon, तो इतना कोई encouraging वाला सीन नहीं है. I was lucky, very lucky, because our family was like, education and सब कुछ हो गया था, तो um, but बचपन से ही you have I think वो तो it's in your system. Hmm. you कुछ लोग डिस्कवर कर लेते हैं उस चीज को, Okay. just like you were saying that you did engineering, like, and now you're in this thing, so you found your calling, Yeah. या जो भी चीज होती है वो आपको आ जाती है. So it was Peshawar, and exactly on 9th of March Hmm. 2003 I sat in a bus, Okay. and those were very terrible times. And the 10th of March I went to Karachi, because everybody was telling me, hey, the kind of stuff that you write and the kind of ideas that you have to be, if not in another country, at least Karachi में तो आपको होना बड़ा ज़रूरी है. Okay. And so I went there, और जो कुछ मैं करने गया था, सिर्फ एक वो काम नहीं किया, बाकी सब कुछ हो गया. Acha. Yeah. So that then I ended up in Interflow, which is like a nursery. It is like a institution, because अभी भी जितने भी आपको media industry, the marketing, somewhere some person has worked at Interflow. Okay. And मतलब आप जहाँ भी जाते हैं, so it's just like, I studied in Edwards College Peshawar, तो वो जहाँ भी आप जाते हैं तो कॉन्वर्सेशन थोड़ी सी होती है. हमारे पश्तो में तो होते हैं अस्सलाम वालेकुम, वालेकुम सलाम, कैसे हैं, खैर हैं, कहाँ गए हैं. तो एक तो जो गांव का पता चले तो दैट कजन का फ्रेंड, हाँ, तो पांचवें छठे क्वेश्चन पे आपका डाखाना मिल जाता है. ठीक है. एंड देन इट्स कहाँ से पढ़े, एडवर्ड, हो रियली, व्हिच बैच, दिस ओ यस आई वाज इन दिस एंड दिस, तो आपका वो जाता. तो सिमिलरली इट्स इंटरफ्लो पे भी समवन समवेयर, ऑल द even if we look at the TV or we look at advertising and everything, so people have been there. So I'm the luckiest and the laziest person in advertising in Pakistan. Creative casino, I'm the luckiest and the laziest. Okay. Maybe I was just too lucky that I became lazier with that. Lekin, that's more it. So I worked at Interflow for exactly 14 years. मैंने अपना रेजिग्नेशन इस तरह टाइम किया था कि my first day and my last day were the same exactly 14 साल Mm-hmm. मुशक्कत. Nice. So, you talked about Peshawar a lot. If you don't mind, can I ask you a question? Like, मेरा एक दफ़ा इत्तेफाक हुआ है पेशावर जाने का. मेरे लिए काफ़ी सरील एक्सपीरियंस था बिकॉज इवेंट, उसकी जो अंदरून साइड है, किसा खानी बाजार एंड ऑल. यू आर स्टिल लिविंग इन पेशावर, राइट? No, ओके. राइट नाउ वेयर यू आर बेस्ड? Islamabad. Islamabad. Yeah. So what's Peshawar for you? Would you like to share anything like specific about that city? Yeah, they gave whichever city you've Uh, grown up in. I've spent more life outside Peshawar mm-hmm. than in Peshawar. लेकिन one like Islamabad में मैंने ज़्यादा टाइम गुजारा है, कराची में कम टाइम गुजारा. I still consider Karachi my second home. Islamabad सुन तो नहीं. That's, but any place where you've spent your childhood, every street, every Mm-hmm. road, every turn, it has some sort of a story. Exactly. कोई मेमोरी होती है, वो यार यहाँ पे लड़ाई हुई थी, वो यार यहाँ
पकड़े गए थे, और यार ये हुआ था, ये हुआ था, ये हुआ था. So I think that's the attraction of a city like that. And again, uh, एक चीज होती है कि the I think the second tier cities or the smaller cities, the people over there are more enthusiastic or Mm-hmm. about the Yeah. place. And plus it's seen quite an unfortunate times, so unfortunately. Yeah. So थोड़ा सा और भी ज्यादा बंदे के दिल में एक चीज आ जाती है. Yeah. Yeah. And it's very raw and very natural, and it's like a home to different kind of people as well. And वहाँ पे एक सही शहर की सही मायनों में एक वाइब आती है जो मुझे एक्सपीरियंस देखें, वो तो आपको सिटी लाइक लाहौर, बिल्कुल वहाँ से ठीक है, इवन पिंडी, मैं उधर गुम हो जाता हूँ ट्रैफिक की वजह से. तो लेकिन यू गो टू सिटी लाइक दैट, यू गो टू सिटी लाइक कराची, इस्लामाबाद इज अ ब्यूटीफुल प्लान्ड सिटी, बट इट्स अ वेरी रीसेंट प्लेस. हमारी जो मेमोरीज हैं, आई थिंक नाउ दैट आई लुक एट इस्लामाबाद, ओह माय गॉड, आई मीन, बिकॉज late 90s to mid 2000s, I think that was the golden time in Islamabad. It wasn't, वो बिल्कुल जंगल भी नहीं था, और वो बिल्कुल जो this concrete jungle there has become, Yeah. वो भी नहीं था. So I think that was the best time over here. But some cities, they have a soul, they have a पुरानी उसके साथ एक चीज बिल्कुल होती है. connections Yeah, हैं. and some cities they're very convenient to live in, Yeah. and you've got parks and you've got, अब तो खैर आई डोंट नो कि सिक्योरिटी है कि नहीं है, लेकिन उस तरह की Good चीजें food. Really? No, not Islamabad. हाँ Shah. हाँ हाँ हाँ, बस कुछ you got Not me. हाँ हाँ. Islamabad. खैर, I'm talking about यार Peshawar. इस्लामाबाद को, I love the place. You are quite young, but I mean, my age people, because we've seen the actual Islamabad, the beautiful, the green and the quiet, and कि यार आप जा रहे हैं और गाड़ियाँ नहीं हैं, and बिल्कुल. like you even if you don't have कोई गाड़ी आसपास नहीं है, वॉलेट आपका घर भूल गए हैं, सिर्फ you just do this and you'll get a ride, and it was a city of courtesy. And there's a funny, क्या funny stories. When you're in advertising, you've got quite a lot of funny stories. They can, I Yeah, you think, can share one. No problem. but with every city has a certain code, Hmm. and when there is mass influx for whatever reason, हमारे case में it was not a very good reason, because of all the problems that we had recently, and there was a war, Going proper on, war. yeah. उसकी वजह से people are forced to move on. किसी का भी दिल नहीं करता अपनी जगह छोड़ने के लिए. वो आप चाहे सहरा में बैठे हो, उनको that's their beauty. You ask them and you tell them कि यार let's go to पता नहीं कहाँ कहाँ, they'll be telling them ठीक है मैं चक्कर लगा लूँगा, मैं यहाँ से जाना नहीं है. Nobody wants to do that. Yeah. The reason I love Islamabad is because of the mountains. There are, I think, if you live near the sea, if you grow up near the sea, or if you grow up near the mountains. यार I was in Karachi जब मैं गया था, तो 10 महीने बाद मैं वापस लाहौर आया, and I saw खेत, and I started airport से निकलते हुए like green. So my colleague Shazia, she was like, yes, तो मसला क्या है? मैंने कहा यार वहाँ कराची में there is brownry, जो green है उसके ऊपर इतनी dust पड़ी होती है कि आपको green नजर नहीं आता. बिल्कुल. And you come to Islamabad, I saw the mountains, and I was like, oh my god, mountains. So seeing the mountains is very, very important. Yeah. So you're more like a mountain person. Yeah, I have a tent, I've got a compass, I've got like everything. जाता मैं नहीं. अच्छा. Yeah, I've got a separate YouTube का profile मैंने बनाया हुआ है, in which I see these videos about people camping in the snow and everything. So बस वो लोग जा रहे हैं, ठीक है, मैं देख के बस खुश हूँ. अच्छा. I can't, because again, as I said, कुछ मुझे luxuries चाहिए जो आपको mountains में नहीं करनी होती. Mountain का पूरा मामला ही वही वाला है, लेकिन some things Okay. nice shower and everything, वो जब तक नहीं होगा तो I'm good. Okay. So, वैसे कभी कैंपिंग की आपने? हाँ.
because it's fun to do that. Oh We yeah. did it a lot of times, so yeah, it's all. I One of my passions is वो बचपन से what I used to do is मैंने कहीं पता नहीं किस चीज़ में I saw Winnebago. यार Winnebago is a brand, लेकिन वो motor homes जो होते हैं, the huge bus with a whole Yeah, yes, house yes, yes. inside. I saw that and I started drooling over it. I think 1998 या पता नहीं कौन सा कोई motor show था. There is this brand called Scania Hmm. जो trucks बनाते हैं. मैं उनके स्टॉल पे गया. मैंने पूरा अपने हाथ से चीज़ बनाई हुई थी. मैंने उसके अंदर पता नहीं क्या क्या रेडार डाले हुए थे, सिक्योरिटी, दिस एंड दिस एंड so I went over there and they look at me and they're like, you designed this thing? I was like, yeah. So I was like, can we make it? आप मतलब उस बचपन में बंदा पागल होता है ना कि यार you think कि यार ये चीज़ है, ये हो जाएगी. खैर those guys are shocked. And then खैर they started थोड़ा सा वो भी कहने के, do you have any idea how much this will weigh? इतनी सारी चीज़ें डालने के बाद मतलब इसको चलाएंगे किस तरह? Hmm. बिकॉज मैं जहन में सोचा था, एक आइडिया आया था, ये जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट होती है ना, उसके वो सुजुकी जो पिकअप होती है या उसके Hmm. ऊपर दे हैव एक प्रोपेलर सा ऊपर लगाया होता है, जो वो तो डिज़ाइन का एलिमेंट होता है. बट आई सॉ इट एंड आई वाज लाइक, यार व्हाट इफ यू पुट लाइक अ dynamo of sorts इसके पीछे and you've got like two propellers on the roof, so when the car is going it will charge the batteries and stuff. And I was like, यार ये तो सीन हो सकता है इसके अंदर. In the 90s, I mean, the batteries and everything was quite heavy, So science पीछे engineering बंदे को समझनी चाहिए. बिल्कुल. सिर्फ शौक से चीज़ Now नहीं हो it's सकती. possible. हाँ, now it's Yeah. possible. So what is advertising for you as a person? How you define advertising? It makes people buy things and do things that they otherwise would not. Okay. That is as far as the product is concerned. लेकिन advertising is, या advertising के पीछे जो उसका the way it is done, the way it is approached, it can make or break like nations and societies. ये जो like 2017 no, 2015 something समझ ले. There comes a time when you work on brands and everything कि रात को आप सोते हैं तो कहते हैं कि यार आज मैंने क्या किया है. लोगों ने कोई पैकेज ले लिया होगा, बिल्कुल. सिम ले ली होगी, मतलब there will be more, किसी ने जूस ले लिया होगा, ये हो गया होगा, but what exactly did I do? तो वो एक क्वेश्चन होता है. मतलब खैर I'll get off track, you have to get me back to the question. Sure. Advertising is most fun. जितना आप जूनियर होते हैं, it's the most fun. जितना जितना आप सीनियर होते जाते हैं, it becomes, because क्या होता है आखिर में, if you are not a micromanager and if you are not an insecure person, if you वो डेविड ओगिलवी की बात, if you got a dog why bark, आपके पास एक अच्छी टीम पड़ी हुई है, let them work यार ऐश. लेकिन उसके बाद क्या होता है कि sometimes you think कि यार आज तो मैंने ना कोई लाइन लिखी, ना मैंने कोई कॉपी की, ना मुझे कोई कॉन्सेप्ट मैंने किया, सारा काम उन्होंने कर दिया. नहीं, लाइक गुड. यू मीट द क्लाइंट्स, हाँ यार बस आई एम हियर, आई एम वर्किंग ऑन इट, ये वो, हालांकि काम तो कोई और कर रहे हैं. तो आप सिर्फ वो कंफर्ट दे देते हैं, आप अपनी टीम को वो कर लेते हैं, लेकिन आफ्टर अ व्हाइल यू लाइक, यार मैं क्या कर रहा हूँ. बिल्कुल. सो इत्तेफाक से मुझे मैं आई डोंट नो मैं कहाँ गया था, मैं वापस आया अचानक से. कैन आई टेक नेम्स ऑफ लाइक, हाँ, sure. अली फलान की पिच थी. एंड माई थिंग इज के जब आप पिच करने जा रहे हैं तो गॉट नथिंग टू लूज वाली उस पे जाएं. नहीं मिलेगा, नहीं मिलेगा, लेकिन वहाँ बैठे लोगों को पता जरूर चलना चाहिए कि उस्ताद, we wish we could do that, these guys are different. तो वो करके जी एजुकेशन यूं बड़ा आप जनाब जी हुजूर इस तरह की चीज़ें, डेवलपमेंट सेक्टर बिल्कुल. डर डर के काम करते. प्रोजेक्ट नहीं मिलेगा इसके बाद. अच्छा, सो वी डिड दिस पिच एंड उससे मुझे एक चीज़ ये आई कि वी गॉट द अकाउंट, लेकिन दिस रियलाइजेशंस
हुई कि यार if I do or my team or anybody like Interflow does anything और उससे एक भी parent convince हो जाए to put their child in school, especially a girl child in school, ऐसे पूरे काम हो गया because you've changed a whole stream of household. एक बिल्कुल। फैमिली का आपने जनरेशन चेंज कर दी, वो सब कुछ. सो वो एक रिवॉर्डिंग. खैर बचपन से जरा हमारा एक ग्रुप ऑफ पीपल, हम एक दूसरे को शदीद पाकिस्तानी कहते हैं, जरा मुल्क से मोहब्बत जरा ज्यादा. तो कुछ था कि यार टू डू समथिंग फॉर द कंट्री बिकॉज आई एम obsessed with the whole Cold War का जो एक era था and the way they sold a narrative west versus the east. तो वो देख के मतलब कि यार वो आपको मतलब रैम्बो 3 देखने उसकी आखिर में एक लाइन थी, मुझे अभी भी याद है कि दिस फिल्म इज डेडिकेटेड टू द गैलेंट पीपल ऑफ अफगानिस्तान एंड दिस. उससे पहले कितनी सारी फिल्में. तो वो आप वो गोली आराम से मंजन लेके आपको पता ही नहीं चलता कि यार मैंने कुछ फक्की मुझे पड़ गई है इस वक्त. तो बाद में आपको पता ओ चीज द मैसेज वाज समथिंग एल्स. और हमारा क्या था कि ग्रोइंग अप आई वाज लुकिंग एट द नैरेटिव ऑफ पाकिस्तान एंड इट वाज वेरी फ्रस्ट्रेटिंग. को यार इस तरह नहीं होता. लाइक देयर वाज दिस कोई कंट्रोवर्सी अबाउट व्हाट अली अजमत साहब सेड recently about Madam Noor Jahan. I think there was a choice of words में कुछ हो गया था because I think what he meant was the packaging of the content. Because talent wise तो मतलब आपका दिमाग हिल जाता है if you listen to her and if you listen to जो हमारे म्यूजिक के लोग हैं. मतलब after this thing I'll give you an example of this Kawali by Sabri brothers. You have to listen to it on headphones and it's a live recording and there is a micro delay between the voices of the two brothers which is not possible without a computer. और ये उन दिनों की बात है. So खैर, coming back to the point, तो I think it is the packaging of the narrative of the country जो हम देख रहे थे कि यार बाकी दुनिया ये कर रही है लेकिन our Pakistan was not connecting to its people. वो MTV generation and all that जो इस वक्त हमारी जिसको हम ये digital generation कह रहे हैं, हम अभी भी इनके साथ नहीं connect कर पा रहे. बिल्कुल. And they are drifting away. I see a lot of don't put this in the thing. लेकिन these young people, I talk to them and they're like वगैरह and this and I'm like what's wrong with वगैरह. Like वो बाद में मैंने थोड़ा सा रिसर्च की तो पता चला कि it's the Indian influence and I'm like why would you copy a copy. कॉपी करनी है तो फिर असल की कॉपी करो फर्स्ट ना. कॉपी कर लो. तो फिर प्रॉपर वेस्ट को करो. ये क्या आप एक फोटो कॉपी की आप कॉपी कर रहे हैं. ठीक है वी ग्रू अप बर्गर वाले माहौल में एंड ऑल दैट थिंग बट एटलीस्ट आई मीन यू नो ये चीज नहीं थी. द मोर यू ड्रिफ्ट फ्रॉम हु यू आर योर आइडेंटिटी द टाइम कम्स व्हेन वो सब कुछ टूट ही जाता है. Okay, so now we talked about a lot the challenges. So would you like to highlight any specific challenges जो Pakistani advertising industry face कर रही है right now? Like Fear. any specific challenges जो industry में है अभी हमारी advertising industry? Fear. Okay. And it's about losing a client or money or budget or something else? On every level there is a fear. There is a fear. अगर हम स्टार्ट करते हैं इंडिविजुअल से, यार नौकरी चली जाएगी. Okay. जो कि आजकल नहीं होना चाहिए. भाई आजकल लोग एजेंसीज में नहीं टिकते. डायनामिक्स चेंज हो गए. फ्रीलांसिंग के आपके पास प्लेटफॉर्म्स हैं. इफ यू आर अ म्यूजिशियन यू डोंट नीड अ रिकॉर्ड कंपनी, पुट इट ऑन यूट्यूब, यू आर अ स्टार. ठीक है. सिमिलरली तो वो फियर खत्म हो जाना चाहिए. एजेंसीज दे आर लूजिंग बिकॉज दे डिडंट उन्होंने वो दे थॉट कि यार डिजिटल एंड एवरीथिंग, दे डिडंट टेक इट सीरियसली. दे आर नॉट गियर्ड towards that thing. Miles Young, who was the chairman of Ogilvy, he said, what do you mean a digital department or a digital? Every agency has to be digital. The game has changed. Simple. Client side पे हर किसी को
मतलब हर कोई कहता है कि तो हमारी पाकिस्तान में इस चीज़ से जान नहीं छूटी यार, ये इंडिया के ऐड बड़े अच्छे होते हैं, अबे वहाँ लोग अप्रूव करने के लिए बैठे हुए हैं. आई हैव सीन ब्रिलियंट वर्क ओवर हेयर. भाई कोई अप्रूव करने वाला नहीं है. ओके. आप अप्रूव करेंगे तो एजेंसी तो हाँ, अच्छा एजेंसी का फिर क्या है कि दे डोंट डू कोई पैशन प्रोजेक्ट पकड़ के. अच्छा. मेरी सबसे ज़्यादा इसके अंदर कसूर है. somebody came to me कि यार हमें वो चीज़ करनी चाहिए, देखो सेठ ये करता है, सेठ. Now again as I keep on saying, I'm the luckiest guy. I had a boss like Tahir Khan who would come to me and would say कि यार I'll spend the money. मैंने एक फिल्म का स्क्रिप्ट उनके साथ शेयर किया था, उन्होंने ऑलमोस्ट गले दबा दिया कि यार I'll do it but you just do it. तो हम लोग वो दर्जी का गरेबान मोची का जूता हमेशा फटा हुआ होता है, दूसरों के लिए करते हैं, अपने लिए हम चीज़ नहीं करते. तो एक वहाँ पे चैलेंज है कि जहाँ पे आपको कोई सपोर्ट वाला नहीं है, आइडियाज़ हैं लेकिन बिकॉज देयर इज़ मनी नीड्स टू बी स्पेंट एंड स्टफ. आजकल तो खैर बहुत कम मनी चाहिए, और तो वहाँ पे मुझे से सुस्त लोग बैठे हुए जहाँ पे मे बी पीपल हु कुड डू दैट, तो उनके बॉसेस नहीं थे करने के लिए. सो इट्स अ बोथ साइड्स की चीज़. एंड कुछ फिर मैंने नोट किया एज अ क्लाइंट, इफ आई एम योर क्लाइंट, आप जाके नफले करें, बिकॉज मैं तो आपको पागले की तरह छोड़ दूंगा यार, ले आ मुझे, मैं कुर्सी से गिर जाऊं, मतलब just do something different. It was very frustrating to look at the agency side. They were very lethargic and they were not, वो मुझसे फ़ायदा नहीं उठा सके कि यार somebody like me sitting on the other side as a client and I have influence over the team कि if I tell them कि यार this is the idea, go for it, अच्छा जी कर दे. लेकिन दूसरी साइड नीड्स टू ब्रिंग एन आइडिया. उनको पुश करते हैं कि यार कर दे कुछ डिफरेंट, यार कर दे, विन एन अवार्ड, दिस एंड दिस, आई एम हियर, आई विल हेल्प. वो एंथुसियाज्म उस तरह का नहीं है. सो आई थिंक इट्स मोस्टली फियर. Okay. ऑन बोथ साइड्स. Makes sense. And where you see the equation of client versus the creative person, or the producer versus the production house versus creative person, because as you just say कि उन्हें space देनी चाहिए, but एक दूसरी तरफ का argument ये होता है producer का कि budget issues, very normal thing. We have some limitations in terms of producing the content, in terms of spending जो करना है हमने budget उसके ऊपर, in terms of resources, in terms of already कोई एक्टर्स के साथ कॉन्ट्रैक्ट चल रहा है, ऑल स्पेसिफिकली ब्रांड इमेज को लेके कि जी लेट्स सपोज फ्लां एक ब्रांड है तो उसकी कुछ सर्टन लिमिट्स हैं, हमने उसी में चलना है, ब्रांड वैल्यूज़ हैं, कुछ स्पेसिफिक SOPs हैं, यू हैव टू फॉलो देम. हाउ यू सी दीज इक्वेशंस? वन ऑफ माय मेंटोर्स स्लैश मोहसिन आजम अली हयात रिजवी, तो उसने मुझसे पूछा था कि यार व्हाट डू यू थिंक, इज एडवर्टाइजिंग एन आर्ट और अ क्राफ्ट? तो एडवर्टाइजिंग इज अ क्राफ्ट. आर्ट में क्या होता है कि यार आप अपनी मर्जी के लिए, अपनी खुशी के लिए आप एक चीज़ बनाते हैं, दुनिया को पसंद है नहीं है, मरो तुम लोग, मुझे कुछ नहीं लेने देने से. ओवर हेयर द आइडिया, एंड ऑफ द डे तो एडवर्टाइजिंग का ऑब्जेक्टिव तो ये है ना, टू कन्विंस समबडी. तो उसमें हाँ, उसके अंदर द क्रिएटिव एंड द इमेजिनेशन एंड एवरीथिंग हैज़ टू बी देयर. वरना तो आप जाके सुजुकी के ऊपर वो लाउड स्पीकर लगा के ऐलान करके, तो चीज़ वो भी एक तरीका है. लेकिन भाई ये नहीं हो सकता कि मैं अपने शौक के चक्कर में मैं ये ना देखूं कि यार ये जो कप है इसकी क्या रिक्वायरमेंट है. एंड ऑफ द डे तो मैंने इसको बेचना है ना, तो आई हैव टू, जो इसकी वैल्यूज होंगी, आई हैव टू, क्रिएटिव पर्सन का एक, आई डोंट बाय दिस आर्ग्यूमेंट कि जी वो अच्छा आइडिया है सर, फिर बजट देंगे. अबे यार, यू हैव टू, आई हैव टू थिंक एक लॉजिकली कि इस चैलेंज क्रिएटिव का ये होता है कि यू हैव टू वर्क विद इन सम पैरामीटर्स. आपको पता होता है कि यार व्हेन यू आर गेटिंग इनटू अ प्रोजेक्ट, आपको पता होता है कि यार
ये ब्रांड क्या है, इसका कितना मसल है, इसका क्या चीज़ होगी, मैंने इसके अंदर, वरना तो आप दे दें किसी को $1 बिलियन, तो वो तो कोई भी उठा के कोई ना कोई एपिक चीज़ बना ही देगा। बिल्कुल। हमारा चैलेंज क्या है? हमारा चैलेंज ये है कि वी हैव टू कम अप विद अ क्रिएटिव आइडिया। अगर कहीं पे बजट है, लगाओ। वो क्लाइंट कहता है कि सर है, बेफिक्र हो जाए, इसका ये मतलब नहीं होता कि आप बहा दें उस पैसे को। इट्स गॉट नथिंग टू डू विद मनी, सिंपल एज दैट। ठीक है, कुछ अगेन एज आई सेड, जहां पे होगा आपके पास रूम, आपने करना है, वरना अदरवाइज यू हैव टू कम अप विद एन आइडिया that sells the thing, or that communicates the thing. I was very young when I saw this UN की किसी चीज का ad था. I'm a super eco-friendly person. मैं कहीं जाता, लाइटें वाइटें ऑफ, इधर उधर सारा सिंगल यूज प्लास्टिक, नथिंग, सही चीज. एक ad था, there was this old lady who's knitting and she's got a dog next to her, और उसको सर्दी लगती है, तो शी टर्न्स ऑन द हीटर को थोड़ा सा तेज कर देती है, कैमरा zooms out, so she is in the window, and then the other buildings के अंदर, और the same lady in other windows, सब ने हीटर ऑन कर दी, and you see the chimney and it goes up, और ऊपर वो ब्लैक क्लाउड और सारा सब कुछ बन जाता है. रिवर्स सेम सिचुएशन, शी इज knitting, उनको सर्दी लगती है, शी गोज and grabs a shawl and puts one shawl on the dog, फिर zoom out होता है, there is no chimney के out, और वो था यार, समझ आ गई कि यार मतलब इवन इफ आई एम एट होम आई शुड वेयर समथिंग वार्म, तो मुझे ये हीटर को इतना फुल ब्लास्ट पे करने की जरूरत नहीं होगी ना. तो अब उसके अंदर क्या बजट था? नहीं होगा उनके पास बजट, और अगर था भी तो यार दिस इज एन इफेक्टिव मैसेज व्हिच इज नॉट लिंक्ड टू मनी. ये भी नहीं हो सकता कि आप बिल्कुल वो थूक के पकौड़े बना लें. वो तो एक होता है ना, थूक में पकौड़े तलने, नहीं होता थूक के पकौड़े तलने. ये भी नहीं हो सकता कि जी ₹5 है सर, ये भी जरा जाती फिर इसको होता है. लेकिन दोनों साइड पे देयर हैज टू बी सम लॉजिकल थिंकिंग अबाउट स्पेंडिंग. बिल्कुल. And how you see specifically nowadays technology transforming this industry? As you just mentioned before, आपने बताया कि different non-linear approaches हो सकती हैं. We can make ads more interactive nowadays as well. Would you like to share anything on that? कोविड की वजह से थोड़ा सा ब्रेक आ गया, अदरवाइज आई गो एंड गिव टॉक्स टू डिफरेंट स्टूडेंट्स, और उसमें से एक प्रेजेंटेशन है which is just one slide. Okay. Just one slide. Last year I gave that, and उसमें था कि Facebook has turned 18. वो वैसे आपको समझ नहीं आती, लेकिन जब आपको लिखा हुआ नजर आता है, आप सोचते हैं कि यार रियली. And Facebook was not the first wave of internet. It was in the इंटरनेट को आए हुए टाइम हो चुका था, चीज़ हो चुकी थी. ठीक है, 18 तो अभी मेरे ख्याल में जनवरी या फेब में 19 का हो गया होगा फेसबुक. तो इन अ लॉट ऑफ कंट्रीज इट कैन वोट, इट कैन हैव अ लाइसेंस, इट कैन डू, इट्स अ प्रॉपर एडल्ट. हमारे लोग अभी भी कहते हैं जी फ्यूचर टेक्नोलॉजी है. ओ यार, ओ भाई, प्रेजेंट क्या, वो पास्ट भी हो चुका है बहुत सारी चीज़ें. ठीक है, देयर द टेक, वो रेवोल्यूशन, वो पैराडाइम शिफ्ट हो चुका है. हमारे लोग, वी मिस्ड द ट्रेन इन द टेक फर्स्ट वेव, डिजिटल की मैं बात कर रहा हूँ, सेकेंड वेव, और थर्ड वेव में तो आई डोंट थिंक कुछ भी हो रहा है. देखें, योर टुडेज क्रिएटिव पर्सन हैज टू बी अ प्रॉपर नर्ड. टेक, उनको पीछे समझ आनी चाहिए. लाइक फॉर एग्जांपल, आपको पता है स्पॉट लैमिनेशन क्या होती है? No. ओके, वो प्रिंटिंग की एक चीज़ होती थी. ठीक है. या मतलब वो कुछ होता है ना कि वो मैट फिनिश होता है और एक उसमें शाइनी चीज़ होती है, स्टफ लाइक दैट. जब वो टेक्नोलॉजी आई थी तो somebody was reading ना कि यार क्या हो रहा है, क्या हो रहा है, क्या हो रहा है. ओए यार, ये चीज़ आ रही हो, क्लाइंट के पास गया होगा, सर ये हम बना लो. तो जब उनका कैलेंडर आया होगा तो वो उस वक्त बाकी लोगों ने वही पुराने वाले कैलेंडर किए होंगे, इनका कैलेंडर इस तरह आया हुआ होगा. हम उस टेक को नहीं एम्ब्रेस कर रहे, वी आर डायनासोर्स. ठीक है, हम अभी भी वो सोचते हैं. मैं एज अ क्लाइंट एक जगह पे बैठा हुआ था और मुझे प्रेजेंटेशन हो रही थी, और मैंने उनको बीच में रोका. मैंने कहा यार
पार्टनर इसके अंदर डिजिटल क्या है जी सर दिस मैंने कहना यू टेक अ न्यूज़पेपर का एड जेपैग फाइल यू पुट इट एज अ बैनर ये ये कितना डिजिटल है आप वही वीडियो जो आपको यूजुअली आप टीवी पे चलाते हैं वो आप यूट्यूब या फेसबुक पे चला रहे हैं फेसबुक पे बहुत सारा एहसान करके क्रॉप करके यू गो वर्टिकल विच इज जो ऑफ हो गया है काफ़ी सारा तो हाउ इज दिस डिजिटल लाइक व्हाट्स गोइंग ऑन ओवर हियर नहीं वो हम रीच और वो मैंने कहा बट दैट्स द मीडिया बाइंग साइड ऑफ इट ना और इवन देयर टारगेटिंग एंड स्टफ दैट्स अनदर थिंग लेकिन इसमें क्या है वो खैर उनको समझ नहीं आई बट आई गेव देम दिस एग्जांपल कि Honda UK did this thing. Again, can I take names? हाँ, sure, sure. तो Honda UK did this thing. 2010 maybe इस तरह की टाइम पे था कि they have got this regular car और उनकी जो स्पोर्टी वर्जन होता है उसको टाइप आर कहते हैं जिस तरह दूसरों में भी होगा Yes. हर एक का एक Nismo and all that thing. So they had this campaign which was digital and they shot 2 films. Okay. This father who's taking his kids to school या picnic या something तो वो आप करेंगे वो चलती रहेगी however अगर आप कीबोर्ड पे जो R का बटन है जब आप उसको प्रेस करेंगे तो the film will flip Mm-hmm. same angle same चीज़ है but the guy is a bank robber and he's going with his gang members so every time you press type R टक 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 चीज़ चेंज होती जाती है now if as a creative मुझे नहीं पता कि यार this is possible I can have 2 parallel streams और उसका मैं ट्रिगर डाल दूंगा कोई भी ट्रिगर मैं डाल दूंगा how would I come up with this idea अब ये चीज़ टीवी पे नहीं चल सकती ये चीज़ टच स्क्रीन पे भी शायद नहीं चल सकती उसके लिए कुछ और उनको करना पड़ेगा शायद फ़ोन फ्लिप करना पड़ेगा कोई वो करना पड़ेगा तो दैट इज़ वेयर द टेक ऑफ द थिंग गॉट इन्वॉल्व ये टीवी नहीं है जो कि लीनियर है जो कि एक डायरेक्शन में चल रहा है लाइक योर फोन्स यार दे हैव गॉट गॉड नोज क्या क्या इन देम तो हम जब तक इसको नहीं समझेंगे कि यार what is this thing capable of how will we come up with an idea that utilizes that thing creates the wow factor wins you like a bucket full of awards तो ये चीज the tech I tell the students कि यार if you're studying not just marketing लेकिन अगर आप दिन में 3 घंटे 4 घंटे you're studying marketing 4.5 घंटे study tech because इसके बगैर नहीं होगा नहीं हो रहा हो भी नहीं रहा और इसके बगैर होगा तो बिल्कुल ही नहीं यू विल गो ओवर देयर आप कहेंगे जी मैं पोस्टर लगा दूंगा मैं जी ये एड शूट कर लूंगा इसके अंदर फलाना सेलिब्रिटी So for any youngsters who wants to pursue this field, specifically advertising, is there any specific path or any tips you want to share with the youngsters? Because normally there's a route of like filmmaking, and but specifically advertising की कुछ तरह से चीज़ें नहीं होती. filmmaking yeah production in this in advertising is one of the final products it's just the tip of the iceberg Yeah. उसके नीचे जो चीज़ होती है वो तो एक अपनी दुनिया है आई थिंक अगेन आजकल के ज़माने में एज आई जस्ट सेड इट्स द मैरिज ऑफ टेक्नोलॉजी एंड marketing it's a marriage of technology and creativity start following some vlogs start following some blogs जिस तरह the drum या ads of the week या ट्विटर पे जाके या जहाँ पे बहुत सारी इस तरह की चीज़ें हैं वहाँ पे क्या होगा कि बजाय इसके कि आप बहुत सारे पॉइंट्स पे जाएं एक दो को सब्सक्राइब करके उसको फॉलो करें तो आपको एक समरी सी मिल जाएगी कि यार व्हाट्स हैपनिंग वो जब आप कर लेंगे योर एंट्री या you if any youngster is sitting in front of me I mean you know they'll have to wow me वरना तो 20 और बैठे हुए हैं बिल्कुल
तो वो क्या आप वाव करेंगे कि मैं ये समझूं कि बिकॉज अगेन एज आई सेड आई एम हाफ वे से ज़्यादा डायनासोर. आई नो मेरा अपना टेक का शौक है, तो उसी वजह से मैं थोड़ा सा वो हूँ. एज बिफोर आई वाज टेलिंग यू कि अगर मैं एडवर्टाइजिंग ना होता, मैं मैथमेटिक्स में इतना अलजेब्रा में इतना फारिग ना होता, तो आई वुड हैव कोई नासा वासा वुड हैव Yeah. And how you see यूजुअली. the जो अभी नए content creators आ रहे हैं, especially influencers आ रहे हैं, they're making their own content using, and now brands are reaching out to them. Will this change the dynamics of industry? क्या कहीं पे एजेंसीज का रोल चेंज होगा? डायरेक्टली इन्वॉल्वमेंट होना शुरू हो जाएगी ब्रांड टीम्स की अपने स्टार्स के साथ, अपने ब्रांड एम्बेसडर्स के साथ? लाइक इंडस्ट्रियल स्केल पे कोई शिफ्ट नज़र आ रहा है आपको? ये देखें, इवेंचुअली तो चीज़ इवॉल्व होगी ना. हम्म. until and unless agencies go ahead of the curve और वो अपनी कोई ऐसी वैल्यू प्रोपोजिशन बना लें जिससे ब्रांड को और जो आपके कंटेंट क्रिएटर हैं उन दोनों को कोई फायदा हो. यू हैव टू बी यूजफुल. बिल्कुल. ठीक है. बहुत सारी कितनी कितनी कंपनीज हैं दे डोंट एग्जिस्ट एनी मोर. अब कोडैक फॉर एग्जाम्पल, यार आप लोग अगेन यू आर यंग बट कोडैक, हु वुड हैव थॉट कि यार कोडैक जो है वो बैंकरप्ट हो जाएगा. लेकिन बहुत सारी चीज़ें होंगी जो नहीं होंगी. वो देखें, फ्यूचर जो है ना, वो लोग कहते हैं जी AI, अनएम्प्लॉयमेंट. अनएम्प्लॉयमेंट इज नॉट द प्रॉब्लम. अनएम्प्लॉयबिलिटी, लोग भी होंगे लेकिन उनके पास वो स्किल नहीं होगी जिससे वो आप उनको एम्प्लॉय कर सकें. तो AI ने आपको नहीं रिप्लेस करना. somebody who knows how to use AI उसने आपको रिप्लेस करना है. सो यू हैव टू, जो नई जो जॉब्स जो जा रही हैं, गॉड नोज हाउ मेनी मिलियन जॉब्स खत्म हो जाएंगी, लेकिन द जॉब्स का नंबर जो क्रिएट हो रहा है वो उससे ज़्यादा है. सो द पॉइंट इज कि अब कोलीग थे मेरे, तो he met me for coffee and I asked him, यार how's your son in this, he's studying law. I told him the same thing. I was like, yeah, tell your kid कि हर सुबह उठ के निहार मुंह 2-3 टेक के वो फॉलो करना शुरू करें. यार वो तो लॉ कर रहे. मैं उसने कहा कि यार देखो, मेटावर्स और पता नहीं क्या क्या जो चीज़ें आएंगी उसके अंदर तो कुछ लॉज होंगे ना. बिल्कुल. मैं आपके साथ मेटावर्स पे कोई पंगा कर दूं, उस पर कहाँ के लॉज इन्वॉल्व अप्लाई होंगे? वो ब्रांड्स वो सारी चीज़ें क्या कर रही होंगी? डिजिटल की जो चीज़ चेंज हो जाएगी, जो हो रही है, इसके अंदर आपको डिफरेंट चीज़ें चाहिए होंगी. सो नो मैटर व्हाट योर प्रोफेशन इज, उसको हाइब्रिड कर लें विद टेक सो दैट यू आर रेलिवेंट इन द टेक का टाइम. और वो इतना कोई दूर नहीं है यार. मतलब इट्स हैपनिंग. इट्स हेयर. और अगेन वो वही चीज़ आ जाती है कि आपको अगर उसका बैक एंड नहीं पता तो आप फ्रंट एंड पे वही चीज़ कर रहे होंगे जो बहुत सारे लोग कर रहे हैं. सो आई थिंक इन्फ्लुएंसर्स एंड एजेंसीज एंड एवरीबडी नीड्स टू. और पहले क्या होता था कि यार 10 साल बाद गेम चेंज हो जाती थी. अब I was sitting with this PR company and they were working on something for a brand. तो नॉस्टैल्जिया पे बात हुई तो उन्होंने कहा कि यार वो तो हम ये हो गया. तो मैंने कहा कि यार आप अपना जो स्केल है ना ऑफ नॉस्टैल्जिया वो उन पे ना डालें जो आपके के जेनजीज. उनको तो आप अगर आईपॉड वो व्हील वाला दिखा देंगे आखिरी दिन, या they'll be like, oh my god, look at this is so old. and you're like, तो अब गेम चेंज हो रही है एवरी ईयर, एवरी मैक्स 2 years. या और ये टाइम कम होता जाएगा. पीपल से कि यार लोगों का अटेंशन स्पैन कम हो कम गया. है. अटेंशन हाँ. स्पैन नहीं कम हुआ, रिटेंशन स्पैन कम हुआ. ये उनको वो पागल हैं HBO वाले, 8-8 एपिसोड्स एक ही गो में कर देते हैं. पीपल बिंज वॉच, दे डू ना. तो ये कहानी नहीं है कि लोग आप बिकॉज उनके पास इतना वाइड ऑप्शन रेंज है, आपने कुछ शुरू में नहीं पकड़ा किसी चीज में, वो वाव फैक्टर आपने नहीं किया, यू आर गॉन. आप थम की मार हैं. पहले वो रिमोट की मार होता था, थम की मार है. तो रिटेंशन है लोगों का, वो आपको 8-8 घंटे देखना करेंगे. द पॉइंट इज कैन यू Grab the कीप attention. दैट. Yeah, makes sense.
So is there any famous campaigns that you always like, जैसे देख के आपको बड़ा मज़ा आता है, जिस पे आपने काम किया हो या किसी और की भी हो, जिससे काफ़ी इंस्पिरेशनल किस्म की कह लें चीज़ें मिली आपको लाइफ में भी, एज अ एडवर्टाइजिंग गाय भी? I think it's not the campaign kuch bhi, or sometimes you get a reaction or a response which is very very interesting. So we did this campaign for Uphone का 14th August. Uphone के बड़े wild किस्म के ads होते थे. So what do you do for 14th August? And वो दूसरी कोई प्रेजेंटेशन थी, वो हो चुकी थी, लैपटॉप बंद था, और बंद लैपटॉप की स्क्रीन पे, बाय द वे, देयर इज 14th अगस्त का आइडिया, देयर विल बी अ जेंटलमैन हु विल बी प्लेइंग अ फ्लूट, और फिर उसके बाद वो वहाँ से निकल जाएंगे, दैट्स अबाउट इट, अप्रूव्ड, बना लें. कुछ नहीं, कोई स्टोरी बोर्ड, कुछ नथिंग, जीरो, अप्रूव्ड, कर दें. मैनी ईयर्स अगो, मैं 2005 में आई मूव टू इस्लामाबाद, लेकिन 5 6 7 8 9 दिस आई वाज, ये मैंने जहाज़ में गुजारे. आई यूज्ड टू ट्रैवल लाइक मैड. वो जिस तरह वो फाइट क्लब एक फिल्म है ना, मतलब या उसमें समटाइम्स यू वेक अप इन अ होटल एंड फॉर अ मोमेंट यू डोंट रिमेंबर कि मैं किस शहर में क्या करने आया हूँ. सो आई वुड टेक द फोन आउट, उसके अंदर जो रिसेंट ईमेल या एसएमएस, ओ अच्छा ठीक है, बट दोज स्केरी फ्यू मोमेंट्स के यू आर कंप्लीटली नॉट. तो आई यूज्ड टू ट्रैवल क्वाइट अ लॉट. तो एक मतलब कराची एयरपोर्ट पे देयर वाज दिस जेंटलमैन हु couldn't see his eyes, लेकिन he played the flute. और वो जहाँ से वो उतरते थे तो भागते थे, तो in my peripheral vision I would always see, and mind में मैंने mental note बनाया होता कि अरे use him somewhere. Advertising is all about observation. कोई observation, and then the creative people are able to join the dots from that observation. बाकी कोई इतना कोई साइंस नहीं है इसके अंदर. तो आफ्ताब भाई, तो उनको ट्रेस किया, किसी को एयरपोर्ट भेजा, नंबर लिया उनसे, फिर हमने लाहौर में शूट किया. द एंड ही वाज प्लेइंग सोनी धरती अल्लाह रखे ऑन अ फ्लूट. एंड ये मैंने देखा था, एंड आई वाज लाइक यार, ये जो आफ्ताब साहब है, इन्होंने तो पाकिस्तान नहीं देखा ना, लिटरली इन्होंने नहीं देखा. बिल्कुल. हाउ डज ही नो दिस इज सोनी धरती? व्हाई इज ही प्लेइंग दैट सॉन्ग? और वो काफ़ी ज़्यादा वो नेशनल वो करते थे. हम इसको देखे जा रहे हैं, उसकी हर किस्म की ब्यूटी भी देखे, चाहे नेचुरल है, चाहे वो हमारी हिस्टोरिकल है, दिस एंड दिस. हम मतलब ना शुक्र तरीन दुनिया के लोग हैं. तो दैट वाज द इनसाइट जिसके ऊपर बेस करके हमने वो टीवी बनाया. somehow somebody from the US tracked me, and उन्होंने कॉल की, उन्होंने कहा कि जी मैं तो बिल्कुल छोड़ के आ चुका था, मेरे बच्चे हैं यहाँ पे, मैंने उनको कुछ नहीं बताया कि यार पाकिस्तान क्या, ये मैं बहुत ही कोई हुआ होगा उनका जो भी स्टोरी थी. कहते हैं somehow मेरे कोलीग ने मुझे ये दिखाया, एंड आई क्राइड इन माय ऑफिस का वॉशरूम, और मैं बस आपका शुक्र कि आई ब्रिंग माय किड्स टू पाकिस्तान. फर्स्ट आई थॉट कि मे बी यार प्रैंक प्रैंक हो रहा है, अभी वो पीछे से आवाज़ आएगी कि जी कैमरा में देखना ही है, लुक एट द नंबर, मैं यूएस महंगा है जी, मतलब थैंक यू, क्या कहूँ मैं इस चीज़ पे. आई डोंट नो कि उन्होंने फिर बाद में किया नहीं किया, मैंने नंबर सेव, आई शुड हैव डन दैट. बट आफ्टर फ्यू इयर्स मुझे वैसे ही एक चीज़ आई, शुक मी अ लिटिल कि यार मतलब आई विश कि दे ब्रॉट दिस थिंग, या किसी का वो मुल्क के साथ वो दोबारा वो कनेक्शन बन गया. एंड दिस, so I think that was a very rewarding campaign. That was, and again, education पे या इस तरह की चीज़ों पे जो भी आप थोड़ा सा काम करते थे, तो वो ज़रा मज़ा ज़्यादा आता है. अगेन अरिफ फरहान की वो बजट की कैंपेन थी कि यार 4% ऑफ द GDP इज़ व्हाट द UN सेज कि आपको स्पेंड करना है एजुकेशन.
तो हम आइडिया के लिए बैठे हुए थे, तो मैं को कहा कि यार जो 1000 रुपये का जो नोट है इसके ऊपर इस्लामिया कॉलेज की तस्वीर है, जो इस्लामिया यूनिवर्सिटी। तो यार हम नोट के ऊपर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन या एजुकेशन का सिंबल लगा रहे हैं, एजुकेशन के ऊपर हम क्यों नोट नहीं लगा रहे? नोट तो आपको शुड बी, वी वेंट देयर, मुशर्रफ ज़ैदी वाज हेडिंग को आइडिया बताया, वो you see the client's reaction, and it's really nice some times, and it's very kind of them. So those are the kind of things I think they मज़ा आया आता है इस तरह की चीज़ करने में। हाँ, पाकिस्तान इज़ द ओनली, आई डोंट नो कि अभी भी होगा कहीं, बट पाकिस्तान वाज द ओनली कंट्री इन द वर्ल्ड that Pepsi allowed to make an ad for the North American market, North American TV. Okay. कोई भी नहीं करता दुनिया में, पाकिस्तान इज ओनली कंट्री। तो माउंटेन ड्यू का, बिकॉज पाकिस्तान पेप्सी की सक्सेस स्टोरी, हमें हर साल पेप्सी अवार्ड देता था, बिकॉज पाकिस्तान वाज अ कंट्री वेयर पेप्सी यूज्ड टू आउटसेल कोक। तो एंड देन जब माउंटेन ड्यू हमने लॉन्च किया था 2004 आई थिंक 5, सो माउंटेन ड्यू बीट पेप्सी, जो ब्राउन वाली जो आपकी खोला, द सेल्स वेंट अप। इट्स अनदर पाकिस्तान के, यार तुम लोग कौन लोग हैं यार, ये क्या कर रहे हैं? सो दे अलाउड अस टू मेक द एड फॉर द नॉर्थ अमेरिकन मार्केट। तो उसके अंदर वो मलेशिया में शूट हुआ था, and the stunt team was the team that had done Charlie's Angels and The Matrix, and मतलब उस तरह की हॉलीवुड की स्टंट टीम आई हुई। एंड वी हैड उस ज़माने में 2007 शायद, there was a camera that came from Australia, the high speed। अब तो आपका मोबाइल जो है तो 120 फ्रेम्स पे चला जाता है, तो पूरा कैमरा आया, उसके साथ सारी चीज़ें आई, द रिगिंग एंड ऑल दो। सो इंटरनेशनल प्रोडक्शंस में जब आपको वो जो प्रोफेशनलिज्म एंड आई वाज शूटिंग इन लंदन, और मतलब जी तार जो आ रही है ना, तो उसके ऊपर, अच्छा शूट से पहले आपको हेल्थ एंड सेफ्टी की पूरी ब्रीफिंग एंड एवरीथिंग, वो तार आई, तार के ऊपर बंदे ने एक मैट सा डाला, वो सब लोग ऑटोमेशन पे होते हैं, उसका काम है कि यार कोई उसके अंदर किसी का पाँव ना अटक जाए। तो वो सारी चीज़ें वहाँ पे हो गई हैं। अब बाहर आप करते हैं, सारा क्रू जो है दे हैव कलर कोडेड जैकेट्स एंड एवरीथिंग, एंड एवरीबडी, मतलब वो इतना कोई ऑर्गेनाइज्ड एंड रोबोटिक होते हैं कि उनको पता है कि यार मैं कॉफ़ी या समथिंग, तो मैं नहीं वो कर रहा, उन्हें नोट किया हुआ है कि यार इस भाई ने ये काम करना है, दे ऑब्जर्व। तो बाहर की शूट्स में जब इंटरनेशनल डायरेक्टर्स के साथ आप इस तरह की काम करते हैं, दैट इज़ वेयर यू एंजॉय एंड यू लर्न उस तरह की चीज़ें। Okay. So you talked about Pepsi and all. So how you see this brand endorsement thing as ethical point of view के एतबार से कि for example we all know that sometimes drinks are not good for your health, many other things as well, the consumption of sugar and something else, for example taking a lot of other kind of drinks as well. How you see when people in their real life they do something else totally, but when it comes to their marketing, when it comes to their personal brand selling, they do endorse such brands and all. So do you think there is it okay to do that, or as a advertising guy आपको लगता है कि नहीं इसमें कुछ ethics का रोल होना चाहिए? यार कुछ चीज़ों में डेफिनेटली देयर इज़ अ वेरी क्लियर लाइन, लेकिन लाइक I was a super chain smoker, if you can call me that, because when I quit, so I was at 45 cigarettes in my awake time, सुबह उठने से रात सोने तक, not 24 hours. But then tobacco तो उस शुरू में ही बंद हो गया था. I quit, I don't even remember when. As far as these carbonated sodas and stuff are concerned. For example, like Fawad Khan, he's a diabetic. Yeah. But he's like a brand ambassador of Pepsi as well a lot of times. Yes,
चीज़ों में शिफ्ट आएगा। वो कुछ लोग कहते हैं कि आई वाज वाचिंग दिस डॉक्यूमेंट्री ऑन फूड, या कहाँ मैं कर रहा था कि यार अगर शुगर एंड अल्कोहल अगर ये आज वो होते बनते तो दे वुड हैव बीन बैंड इलीगल, ये होता ही नहीं सिरे से। सो यस देयर इज एन एथिकल थिंग। दूसरी तरफ ये भी आता है, मुझे नहीं याद मैंने कब कोई सोडा पिया होगा। भाई मैं अपने आप को देखूं, यू डोंट ओवर डू थिंग्स। इवन अगर आप शहद भी ड्रम कर देंगे तो वो तो हो जाएगा। यस, लोगों कंज्यूमर्स का इतना आईक्यू नहीं है कि आप, बिल्कुल, और देन यू फैंटासाइज कीजिए आपने अगर ये कर दिया तो दुनिया बदल जाएगी। दुनिया बदल गई, वसीम अकरम भाई आ गए, ये हो गया वो हो गया। मतलब आजकल whoever is the cricket, एग्जैक्टली। I don't do, लेकिन you add the fascination and everything to it. Tobacco के ads अगर आपको याद हो, या there was insane money, the marketing budgets were insane. तो you have to do that, लेकिन ये बिजली के बिल भी देने हैं, रोटी भी खानी है, तो कोई बहुत ज़्यादा इलीगल काम बंदा ना करे। लेकिन वो आहिस्ता आहिस्ता आई थिंक जितना अवेयरनेस बढ़ती जाएगी, एंड स्पेशली द यंगर जनरेशन, अगर वो सिर्फ एक्सेंट ना कॉपी करें वेस्ट का, वो जो वहाँ की अच्छी बातें हैं या उसको ज़रा ज़्यादा अडॉप्ट कर ले। सो नाउ इफ यू सी लाइक विराट कोहली ने इंडोर्समेंट्स नहीं की अभी सॉफ्ट ड्रिंक्स की। सिमिलरली क्रिस्टियानो रोनाल्डो ने भी एक इंसिडेंट किया था मीडिया कॉन्फ्रेंस में जब वो बात कर रहे थे, तो उन्होंने भी पानी को प्रेफरेंस दी थी, so, जिसके ऊपर उनको फाइन भी हुआ था, लेकिन ऑब्वियसली इट्स पार्ट ऑफ द SOPs एंड ऑल। सो इट्स चेंजिंग नाउ डेज एंड आई थिंक इट विल टेक सम टाइम बट ऑब्वियसली इवेंचुअली हो जाएंगी। You talked about Pakistan a lot, so obviously I'm from a generation जो कि अभी right now we are very confused about the future of this country. Half of my batch fellows, they are right now already gone. जो रह गए हैं वो तैयारी कर रहे हैं जाने की। What is Pakistan for you? What are your hopes? What how you see the future? यार आई बहुत सारे लोग कहेंगे यार क्या पागलपने वाली बात करें। देखें, पाकिस्तान इज सब ठीक हो जाएगा। यस, हम एक पॉपुलेशन की एक टिपिंग पॉइंट पे बहुत डेंजरस किस्म के दूसरी तरफ जो सीसॉ होता है ना, तो हम पॉपुलेशन वाइज हम बहुत दूसरी तरफ चले गए। लेकिन आई थिंक व्हाट I killed my corporate career, so to speak. I butchered it. ठीक है, because I got into government advertising and everything, because uh, there is जो Pakistan as a whatever, Pakistan as a state जो नहीं कर रहा, it is not communicating to its people. इट इज़ नॉट। और वो कम्युनिकेशन का मतलब, पाकिस्तान में अगर किसी को माँ की दुआ लगी है तो वो बंदा जो कोई भी है, जो ये स्ट्रीमर्स लगते हैं, से नो टू, आज क्या वो ड्रग डे आ गया सर, से नो टू ड्रग्स, से नो टू फलाना, और वो जो कश्मीर डे पे जो डिज़ास्टर्स के जो लगते हैं, हम नहीं कम्युनिकेट कर रहे टू अ वेरी यंग पॉपुलेशन। every day that हमारा मुल्क, हमारा सिस्टम, इट इज नॉट कम्युनिकेटिंग टू द पीपल। भाई आप the worst form of inferiority complex is ये जो हम बड़ा आराम से कह देते हैं कि यार हमारे लोग ठीक नहीं हो सकते। क्यों? मतलब दिस इज द इजी वे आउट ना। अच्छा, फिर यही पाकिस्तानी है, उसको देखें दुबई में कैसे होते हैं। ओ भाई, मैं एक साहब थे तो उन्होंने इसी तरह की कोई बात की, तो मैंने उनको कहा कि यार देखें, अगर आप
BBC का एक one of the biggest productions by the BBC was a series called People's Century. हम्म। उसमें चाइना का एक एपिसोड है, एंड मतलब आफ्टर द सेकेंड वर्ल्ड वॉर एंड एवरीथिंग, इवन इफ यू लुक एट द वेस्ट, मतलब यूरोप तो हो चुका था ना सारा। आप जब उनकी नेशन बिल्डिंग की कम्युनिकेशन देखते हैं, आप हंस हंस के पागल हो जाते हैं कि यार ये क्या है। वो चाइना वाले एपिसोड में देयर इज अ शॉट इन विच देयर इज अ लेडी जो एक बूथ में बैठी हुई है चौक के अंदर, और वो इंस्ट्रक्शंस, बेसिक इंस्ट्रक्शंस दे रही हैं। वो बड़े बेसिक पब्लिक सर्विस की फिल्म में दो बच्ची आती हैं, वो एक बूढ़े अंकल हैं, वो थूकते हैं, उसके तक इस तरह नहीं, उसमें हैंकी में करना है, ये करना है, वो करना है। यार हम यही सोचते हैं कि यार बिकॉज पीएचडी बड़ा मुश्किल काम है, इसलिए हम नर्सरी में एडमिशन नहीं लेंगे। यार एवरी पीएचडी स्टार्टेड विद नर्सरी क्लास 1 का पहला दिन ना। या why are we, if we look at two countries जो मतलब they have done an amazing job, UAE and Qatar. Again, I'm 40 थोड़ा सा ऊपर, I saw the Middle East, the UAE, जिसके अंदर रेत थी यार, मतलब there was nothing over there, कुछ नहीं था, ठीक है। the आप इंफ्रास्ट्रक्चर को गोली मारें, जो उनके लोगों ने जो एक फ्लाइट यूं करके की है, एंड टुडे दे आर अहेड। मतलब वो किसी का मैं देख रहा था कि यार सिटी लाइक दुबई डज मोर इनोवेशन ऑन अ डेली बेसिस देन बहुत सारे मुल्क जो 10-10 साल में कर रहे हैं। यू लुक एट कतर, द पीपल ओवर देयर, इट्स नॉट जस्ट कि यार उन शीशे बन गए, ये हो गया, लोग। तो यू हैव टू स्टार्ट समवेयर। हमारा जो सेंस ऑफ नेशनहुड, आई वाज द रीजन व्हाई मैं उसके अंदर काफ़ी गवर्नमेंट का काम किया, बिकॉज आई वाज होपिंग कि यार आई इन्फ्लुएंस द पीपल टू स्टार्ट। आपको एक सेंस ऑफ नेशनहुड की कैंपेन करनी होती है। अब यहाँ का दो बच्चे, आप एक बच्चे को आप न्यूयॉर्क या कहीं से उठा के जंगल में कर दें, और एक जंगल वाले बच्चे को आप उठा के न्यूयॉर्क ले जाएं, 5 years later what do you think is going to happen? Because you start with a clean slate. तो यहाँ पे जो लोग वो कहते हैं कि, तो एक साहब थे पिछले दिनों से बात हुई, नहीं ये डंडे वाली को, मैंने पूछा जी आपके, अच्छा तो दिन में आप अपने बच्चों को कितनी मरतबा मारते हैं? मैं अपने बच्चों को क्यों मारूंगा? मैंने कहा तो सिखाने के लिए? नहीं 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 नहीं, तो वो उसके लिए। तो मैंने कहा तो अपने बच्चे को आप सिखाने की बात कर रहे हैं, दूसरे के बच्चे को आप डंडा वो कर रहे हैं। दिस इज द शॉर्ट इजी वे आउट कि जी यहाँ कुछ नहीं हो सकता। भैया आप करने वाले बने ना। Like a couple of friends, it took us a very long time and we wasted quite a lot of time. उसके बाद हमने ये सोचा कि यार पार्टनर, बजाय इसके कि आप दूसरों को कन्विंस करें, लेट्स डू दिस थिंग आवरसेल्व्स। और आजकल प्रोडक्शन और इन चीज़ों में इतना कोई खर्चा है भी नहीं। तो some like minded people we are coming together, और हम कर रहे हैं ये चीज़। इस पाकिस्तान ने हमें बहुत कुछ दिया है, माई जनरेशन। ओह, मेरे कजन्स आए हुए थे हॉलैंड से, तो वो मुझसे पूछे थे कि यार यू थॉट अबाउट मूविंग बाहर? तो मैं बहुत गरीब आदमी हूँ, किराए घर में रहता हूँ, लेकिन मैंने उसको कहा कि यार मैं यहाँ जितने पैसों में यहाँ पे मैंने अयाशी की है, वहाँ तो आई हैव टू बी लाइक अ मल्टी मिलियनियर। के जो वहाँ पे जिस किस्म का आपको, ठीक है सारी चीज़ें हैं, बट देयर इज अ ह्यूज प्राइस टू पे। आसान काम नहीं है। हम तो यहाँ नाशुक्र, हम तो मतलब ऐश कर रहे हैं पाकिस्तान में। बहुत सारे लोग, बहुत सारे लोग, यस गुर्बत भी इट्स देयर, इट्स वेरी देयर, लेकिन इतना बुरा हाल भी नहीं है। आप चार बंदे बैठते हैं, दे ऑल स्टार्ट टॉकिंग अबाउट समथिंग नेगेटिव। यार एक अगर आप टीवी देखना ज़रा बंद कर दें, आपको इतने अच्छे लोग नज़र आना शुरू हो जाएंगे, इतने अच्छे इनिशिएटिव नज़र आने शुरू हो जाएंगे, बहुत सारी चीज़ें हो जाएंगी। आपको वही नज़र आता है जो आप देखना चाहते हैं। वी वर, गॉड नोस किस चीज़ की शूट थी, वी वर इन कुआलालंपुर, एंड एक साहब थे हमारे साथ, पहली मरतबा गए थे। ओए यार ये क्या है, ये क्या है? मैंने कहा क्या हो गया सर, क्या हो गया यार, औरतों ने कैसे कपड़े पहने हुए हैं? यार मुझे तो वो स्काई ट्रेन नज़र आ रही है, मुझे तो ये नज़र आ रहा है कि ज़ीब्रा क्रॉसिंग पे लोग खड़े हैं, वो डस्टबिन अपने हाथ में चीज़ लेके डस्टबिन फेंक रहे हैं, ये कर रहे हैं वो।
आपको जो आप जो देखना चाहते हैं आपको वही नजर आएगा ना, जो उनकी वो अच्छी चीज़ है उससे आप सीखें. सो आई थिंक पाकिस्तान में इट्स जस्ट दैट अगेन जो द राइट पीपल, आई थिंक हम बहुत ज़्यादा आप जनाब जी हुजूर और उसमें होते हैं. और जो लोगों ने करना है तो मे बी दे आर नॉट फ्रॉम दैट फील्ड. Mm-hmm. सो थोड़ी सी अवेयरनेस की ज़रूरत है. आई बिकॉज देर आर पीपल ओवर हेयर. ये आई literally in an elevator I met a former फेडरल मिनिस्टर. तो मैंने उनको कहा कि सर आपके एक और पोर्टफोलियो था उसमें तो आप मुझे बिल्कुल पसंद नहीं आए, लेकिन इन दिस वन देयर इज़ अ थिंग. और मैंने उनको कहा कि गेमिंग इंडस्ट्री का, फिर मैंने कहा मिलना है. उन्होंने कहा अरे फिर मिलना है. फिर मैं गया मिलने. सो थोड़ा सा फॉर योर ओन पर्सनल ईगो, आई थिंक व्हेन यू इतने सालों बाद आप थोड़ा नोट करते हैं कि मैंने अगले बंदे को कितने टाइम में ये पिच बेच दी. सो मैंने उनको कहा कि यार गेमिंग इंडस्ट्री का 2018 का मैं एक जगह पे स्टैट्स पढ़ा था, वर्ल्ड बैंक या पता नहीं किसका था वो, कि द रेवेन्यू वाज 159 बिलियन डॉलर्स. 159 बिलियन डॉलर्स. हम 6 बिलियन के लिए कभी इधर और कभी इधर और कभी क्या कर रहे होते हैं. द विजुअल इफेक्ट्स इंडस्ट्री वाज 200 एंड समथिंग बिलियन डॉलर्स. तो मैंने कहा कि यार हमारे पास 160 मिलियन यूथ तो है ना, आराम से होगा. 160 को भी छोड़ दें, 16 मिलियन, 16 को भी छोड़ दें, 160,000. यार 16,000 यंग. आप सोच रहे हैं पूरी की पूरी फिल्म तो हॉलीवुड में एनिमेटेड नहीं बनती ना यार. आप चीज़ बनाते हैं उसके बाद ओवरऑल जो फिनिशिंग होती है या जो डिज़ाइन, फॉर एग्जांपल आर्ट डायरेक्टर ने बना लिया, लेकिन वो जो फाइनल प्रिंटिंग के लिए फाइल जाती है वो तो एक ऐसा आपको चाहिए जो स्पीड हो, जिसकी कमांड्स पता हो, सारी कहानियाँ उनको. सोल्ड. I would say, यार let's bring in this industry to Pakistan. So yes, there are people उनको समझ भी आती है, वो चीज़ कर रहे हैं, लेकिन हम एज अ नेशन, नेशन तो खैर अभी हम फिलहाल नहीं है, हम एज अ ग्रुप ऑफ पीपल हम इंतज़ार कर रहे हैं कि किसी और ने करना है. Hmm. यार बस है ना यार, मतलब नहीं करना, हम चलो खुद कर लेते हैं. And how you see the content going to change this whole narrative of being a Pakistani to do something for Pakistan? And is there any kind of future projects that we can look forward from your side or from any other person you know? यार I think content is what changes things. कंटेंट इज व्हाट सेल्स द थिंग. अगर आप आई एम श्योर बहुत सारे लोग शायद मेरा मजाक उड़ाएं इस बात के ऊपर, लेकिन जो द वॉर बिटवीन कैपिटलिज्म एंड कम्युनिज्म, उसके अंदर मतलब जो अगर कम्युनिज्म को देखें तो वो पैकेजिंग में मार खाएं शदीद तरीन किस्म का. उन्होंने कार्डबोर्ड का डब्बा लिया, उसके अंदर हाउसिंग इधर उधर चीज़ें रखी. खैर वो इकॉनमी इज द मेजर थिंग, लेकिन उन्होंने डब्बा ला के वही वाला एक बोरिंग किस्म का ब्लैंड डब्बा आपको पकड़ाया, जिसके अंदर बहुत अच्छी चीज़ें भी हैं, फ्री एजुकेशन वगैरह. और फिर उन्होंने आपको कहा कि यू नाउ हैव टू बी हैप्पी वरना मैं तुझे भेज दूंगा साइबेरिया. भाई आप किसी को बाय फोर्स हैप्पी नहीं कर सकते. ऑन दी अदर साइड अगर आप देखें तो कैपिटलिज्म ने वही कार्डबोर्ड बॉक्स पकड़ा, उसके अंदर पता नहीं इंश्योरेंस तो जो कुछ भी चीज़ें उनकी जो है, लेकिन उन्होंने उसके जबरदस्त किस्म का रैपर बनाया, उसके ऊपर उन्होंने कहा जी Packaging की. अमेरिकन ड्रीम. और वो सब ने ऐसा खरीदा, ऐसा खरीदा. तो ये जो चीज़ें होती है ये कंटेंट ही तो ड्राइव करता है. आपके थिंक टैंक्स आपकी जो होते हैं वो चीज़ सोचते हैं. आप बहुत आराम से वो चीज़ मलाई की तरह दूसरे को, मासेस को तो आपने कंटेंट ही करना है ना. द पॉइंट इज के उस कंटेंट को एक स्ट्रेटेजिक डायरेक्शन चाहिए और उसका सिंगुलर सिंगुलर ऑब्जेक्टिव वो होना चाहिए कि यार ईयर 1 दिस, ईयर 2 दिस, ईयर 3 दिस. उसको आप डिवाइड भी कर सकते हैं बिकॉज एवरीबडी हैज़ अ कैमरा नाउ, एवरीबडी कैन डू द कंटेंट. आप डिवाइड कर सकते हैं, लेकिन थोड़ा सा अगेन एज आई सेड एक एक स्टीयरिंग पैनल की ज़रूरत है, जो कि
वी आर वर्किंग ऑन, अ कपल ऑफ फ्रेंड्स एंड आई, वो उसके ऊपर कर भी रहे हैं. As far as something that I am working on, अभी कल परसों ही this friend of mine was here and we've been working on this thing. अभी अब उसका नाम हमने लॉक नहीं किया, लेकिन the working title of that is the next Pashtun. और उसका again as I said a singular उसका objective ये है success. कोई पॉलिटिकल, कोई किस्म, नथिंग. उसके लिए बहुत सारे लोग कर रहे हैं ना ऑलरेडी, बहुत सारी चीज़ों में लोग कर रहे हैं. एंड व्हाट वी, जिस तरह एक यूके में वो एक ओल्ड बॉयज नेटवर्क होता है, मतलब वो जो, तो बहुत सारे सक्सेसफुल पश्तून्स भी जो जगह बैठे हैं, पंजाब के लोग भी बैठे हुए हैं यार. वो आपस में एक दूसरे के साथ कम्युनिकेट क्यों नहीं कर रहे? वो केविन स्पेसी ने कहा था कि यार अगर आप 30th फ्लोर पे पहुंच गए तो लीस्ट यू कैन डू सेंड द एलिवेटर टू द नेक्स्ट गाय, एलिवेटर डाउन. आप पहाड़ पे चढ़ गए, आपको पता चल गया है कि यार विच वे टू गो, यू फाउंड इट आउट अ वेरी हार्ड वे, तो यू कैन सी, तो यू कैन एटलीस्ट टेल द गाय और द गर्ल कि यार वो यहाँ से नहीं, यहाँ से यूं 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 कर लो. सो गिव द पीपल अ ब्रेक एंड गिव द पीपल एक चीज़ के यार, लाइक Shahid Afridi is a Pashtun, but he's a Karachiite. Karachi must be proud of him, यार, as a city, wherever you are, wherever. So हमने ये सोचा कि we let's start it with our Pashtuns, और इसके जो हमारे बेस्ट प्रैक्टिसेस और हमारी जो लर्निंग है उसको हम पब्लिश करके whoever wants to take it, यार जहाँ कहीं पे भी कोई चीज़ होती है, मैं अक्सर लोगों को कहता हूँ कि एडवर्टाइजिंग का दो ऑब्जेक्ट, एक आप तो कहीं डायरेक्टली जिससे मैं फ़ायदा मुझे हो रहा है, एक वो जो मेरा मोराल बूस्ट कर रहा है. बलूचिस्तान में कोई ब्रिज बन गया, कोई चीज़ बन गई, मे बी मैं ना जाऊँ अगर किस्मत में ना हुआ, लेकिन वो थोड़ी खुशी हो जाती है यार, मेरा ही तो मुल्क है यार, इट्स अ नाइस थिंग. ग्लोबल स्केल पे आप देखते हैं, यू जेम्स वेब टेलीस्कोप बन गए यार, ह्यूमन अचीवमेंट है, मेरे से कोई वो नहीं है, लेकिन मैं खुश हूँ यार हम भी इंसान इतने पहुँच गए कि यार वो चीज़ कर सकते हैं. सो वी आर स्टार्टिंग दिस थिंग जिसमें हम एक स्मॉलर ग्रुप के लिए सक्सेसफुल, और उनको वो चीज़ बताना है कि यार बस निकल जाओ यार फ्रॉम अ लॉट ऑफ द क्वेश्चंस एंड जस्ट फोकस ऑन सक्सेस वेयर यू आर, वेयर जो भी आप मुल्क में हैं, जहाँ पे भी हैं, और उसकी लर्निंग्स वगैरह हम करके दूसरों को एज अ मॉडल प्रेजेंट करेंगे. यार टेक इट, इम्प्रूव इट, डू समथिंग. सो Okay. दैट इज व्हाट आई एम एक्साइटेड अबाउट. And if anyone wants to reach out to you for this initiative or anything else, is there any kind of LinkedIn links or something we can share with the audience? Sure. LinkedIn and then Twitter. Yeah, so these are on your screen right now, so you can reach out to him and ask him whatever you like. Yeah. Well, that was a very interesting talk, honestly. शायद हम मोस्टली होते ही एडवर्टाइजिंग के लोग आते तो हम ज़्यादा फॉर्मल बाय द बुक्स ही बात करते हैं, लेकिन we got a chance to talk about Pakistan as well. We got a chance to talk about, you know, the issues we are facing in terms of government communication with the people. You also mentioned your other hobby, which is related to astronomy, right? And astrophysics. So Music and yeah, space. Yeah. music and space. So would you like to share anything interesting about that? जिस पे आप काम कर रहे हो या you are really fascinated about? Space, though, I can't do anything other than follow, because Okay. Music, music, I'm trying to convince, बहुत ज़बरदस्त किस्म का कुछ म्यूज़िक है हमारा पाकिस्तान में. बिल्कुल. अगर हम मॉडर्न को देखें, पुराने वाले में तो आई एम श्योर के वो मिक्स्ड रिकॉर्डिंग होगी, मास्टर, मतलब देयर इज अ वेरी कोक स्टूडियो की. मैं बिल्कुल. अक्सर मैं बहुत सारे लोगों को बीइंग इन इंडस्ट्री में हर किसी को मिलता ही करता हूँ कि यार कोक स्टूडियो जब हम एज अ कंज्यूमर हमारे पास आता है तो वो MP3 में क्यों आता है? MP3, डू यू नो व्हाट, एक जो ट्रैक, इट्स जस्ट लाइक आपने ताजमहल बनाया, लेकिन आप तस्वीरें उसकी वो VGA कैमरे की फटी पिक्सल वाली तस्वीरें लोगों को दे रहे हैं.
यार phones can play uncompressed high resolution audio files. आपको यार एक कोई ट्रैक बनाने में बहुत ज़्यादा हार्ड वर्क जाता है, बहुत ज़्यादा हार्ड वर्क जाता है. बिल्कुल. जब आप उसको इतनी फाइल को कंप्रेस करके इधर ले आते हैं तो यू डोंट हेयर अ लॉट ऑफ द डिटेल एंड अ लॉट ऑफ पीपल हैव गुड इक्विपमेंट नाउ. वो टाइम नहीं है कि देयर वाज दिस ऑडियो फाइल कम्युनिटी इन पाकिस्तान, हाई फाई लिसनिंग वाले सारे देयर आर पीपल. अब आपका फ़ोन भी डिसेंट आपको साउंड दे सकता है. तो मैं कन्विंस कर रहा हूँ लोगों को यार रिलीज़ कर दें. मतलब उस दिन मैं किसी को कह रहा था कि यार इतने ज़बरदस्त म्यूज़िक है, उसको कोई वेव फॉर्मेट में फ्लैग DSD किसी चीज़ में दोबारा आप करें. वो तो हमने कैसेट्स के अंदर और उस ज़माने की जो भी थी चीज़ें उसमें कर लिया, लेकिन जो मास्टर ऑडियो क्वालिटी होती है आप ये सरमद गफूर भाई हमारे वेरी माशाल्लाह सक्सेसफुल एंड ह्यूज प्रोड्यूसर, तो उनका ये जी करीब में ही स्टूडियो है. एक दिन मैं गया था, मैंने कहा सर ये क्या किया हुआ है. जेनेलिक देयर इज अ फिनिश तो इसके मॉनिटर्स पड़े हुए थे बड़े कोई ख़तरनाक किस्म. तो मॉनिटर्स एज इन जो जो ऑडियो स्पीकर्स होते हैं, स्टूडियो मॉनिटर्स. तो उस पर उन्होंने कहा कि यार इधर बैठे हैं और सुने, तो यार मैंने मनी बाय पिंक फ्लॉयड इज माय फेवरेट बैंड, तो मैंने मनी ट्रैक सुना है. आई स्वेयर यार मैंने ज़िंदगी में को 5,000 मरतबा शायद सुना होगा वो गाना. I heard stuff that I swear I hadn't heard before because of the detail and the And the this. quality of the output. तो यार आजकल मैं ज़रा उस कन्विंसिंग पे निकला हुआ हूँ. Hmm. नया म्यूजिक तो अनफॉर्चुनेटली आई कांट Yeah. स्टैंड, लेकिन पुरानी ज़रा अच्छी क्वालिटी में मिल जाए. So as a creative director, what used to inspire you a lot, like creativity के लिहाज से? It was music, it was space or something else? म्यूजिक. Okay. और मैंने इतना म्यूजिक सुना कि आई काइंड ऑफ अ लिटिल बिट हर्ट माय ईयर एंड द डॉक्टर टोल्ड मी कि यार हेडफोन्स तो बिल्कुल ही सवाल ही पैदा नहीं होता. और बाकी म्यूजिक, सो आई थिंक माय आउटपुट वाज वेरी 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 अफेक्टेड. आई थिंक आई वाज डाउन बाय 60% माय जब म्यूजिक कम हुआ. कम हुआ. Okay. And you also mentioned you wanted to do some specific kind of music videos. So can you give a little highlight on that? Like what's special about that? नहीं है, people laugh. It's okay. It's okay. At least we'll give them some laughter. Okay, so this we're talking about the late 90s, okay? Okay. And those are the times when I wanted Wasim Akram to feature in a Junaid Jamshed video Okay. as a chef. And खैर I was the first person जिन्होंने वसीम भाई से फिर गाना गवाया भी with Ali Gulpir. That was his first thing. वो नहीं हुआ था कभी भी उन्होंने इस तरह. And so there's a song by Junoon called Mitti, and so the music video in my head in that one was that it was shot at the Auschwitz concentration camp, and there's a trench in which Ali Asma, Salman, Ahmad, Brian, they're just walking in a trench, and then there are scenes of battles like the First World War and the Second World War, and everybody trying to sell you. So there are a lot of things that are sold. So by उस वक्त की जो history थी and stuff that we were sold, different wars and different ideas and everything. तो वो उस तरह है. And then in the end when the camera goes up, so the trench is basically a circle. तो वो सारा टाइम वो सर्कल में ही घूम रहे थे, सारा टाइम हम इसी तरह घूम रहे थे, एंड वी आर बीइंग सोल्ड डिफरेंट थिंग्स. तो वो खैर मैंने भेजा और मैंने बहुत ज़्यादा उसको पुश किया. एंड देन लाइक आई कैन टेल यू व्हेन द गिटार सोलो इन दैट कम्स, सो उसमें क्या प्रोजेक्शन होनी थी, उसके अंदर क्या होना था. आई वुड सी दिस होल थिंग इन माई हेड फ्रेम बाय फ्रेम, एंड आई वुड टाइप इट इंस्टेड ऑफ मेकिंग अ स्टोरी बोर्ड बिकॉज आई कैंट ड्रॉ अ स्ट्रेट लाइन.
तो वो सलमान अहमद भाई के भाई हैं जो मैनेज करते थे, नाम मैं भूल गया, तो उन्होंने मुझे कहा कि यार यू डू रियलाइज हु इज गोइंग टू पे फॉर इट? मैंने कहा यू गाइस, मैं तो आपको फ्री में कॉन्सेप्ट दे रहा हूँ। सो इट डजंट वर्क दैट वे। वसीम को मैनेज कर रहे थे अब वो? सलमान अहमद अच्छा अच्छा जुनून को मैनेज करते अच्छा, थे। जुनून को। हाँ वसीम को आई थिंक अरसलान कर रहा है, राइट? हाँ तब हाँ से। हाँ। लेकिन मुझे जुनैद जमशेद मरहूम, तो ही यूज टू टेल मी कि भाई तू कराची आ जा। तो मुझे अभी भी याद है उनकी एक बड़ी ज़बरदस्त जो आदत होती थी कि जहाँ भी वो कहीं, मुझे बहुत कम मुलाकात होती थी उसके बाद, लेकिन कभी जहाँ भी, ओए तू क्या कर रहा है, वो हाई पिच पे मुझे इस तरह वो सब ठीक है ये वो क्या, सब ठीक है, बस एक आपके कोई गाने की वीडियो नहीं बनाई मैंने उसमें यार, अब तो मैंने छोड़ दिया, तो ये हो गया वो। सो इट वाज उन लोगों की पुश थी टू try Karachi, and then in Karachi when I went and I एक दो आपको रॉन्ग नंबर लोग भी मिलते हैं, लेकिन जिस तरह के घर में बच्चा नहीं होता तो गले में गोद में लेके फिरते हैं, सो मुझे कराची ने इस तरह किया। आई स्टिल थिंक कि कराची इज अ सिटी व्हिच हैज गॉट आर्म्स एंड इट गिव्स यू एन एम्ब्रेस। अच्छा, वो एंड सम रियली ग्रेट पीपल स्पेशली एट इंटरफ्लो, आज भी उनके साथ वही सीन उसी तरह। नाइस। Yeah. आई हैड दैट लॉट अबाउट कराची, बहुत सुना है मैंने इसके बारे में। मैं बिकॉज इस्लामाबाद में ज़्यादा रहा हूँ, तो मैं जब कराची गया था तो मुझे गिल्ट फील होना शुरू हो गया था कि ये लोग बहुत काम करते हैं, बहुत प्रोफेशनल हैं। सुबह के 6-7 बजे आपको आवाज़ें आना शुरू हो जाएंगी ट्रैफिक की। सो या, वेरी प्रोफेशनल। आई थिंक हर हर हम जगह के, हर शहर की हमारी अपनी एक सिग्नेचर एग्जैक्टली। वो है। इन इस्लामाबाद आई फील हम बहुत रिलैक्स हैं, वी जस्ट लाइक दैट, जहाँ काम करते हैं। ओके। यार कुछ शहर जरा ठंडे छोड़ देना यार, मतलब हर शहर। हाँ, इट्स आई लाइक द वाइब। हाँ मैं आई वाज वेटिंग कि कब है मेरी फ्लाइट वापस इस्लामाबाद की, बिकॉज आई एम ऑलमोस्ट नाउ यूज्ड टू इट नाउ। मतलब लाहौर, इफ यू लुक एट लाहौर, यार मुझे ये समझ नहीं आती। कराची बहुत बड़ा शहर है, लेकिन आपको उसमें फिर भी कुछ रोड्स मिल जाएंगी जिस पर ट्रैफिक नहीं होगा। डू यू नो एनी प्लेस इन लाहौर, एनी डायरेक्शन इन लाहौर, जिसमें आपको कोई खाली रोड मिली हो जिसमें रश ना हो? अब तो रिंग रोड को भी नहीं कह सकते हम, वहाँ पे भी रश है है। ना? हाँ। इट्स वेरी वियर्ड। सब लोग कहाँ जा रहे हैं? याशी प्रोग्राम। इतने सारे लोग तो नहीं कर रहे हो कुछ, लेकिन मुझे समझ नहीं आया कि यार लेकिन हाँ वो लाहौरियों की एक वाइब तो है, वो पार्टी करने तो निकलते हैं। हाँ दे आर हाँ। लाइक ऑलवेज, लाइक इफ यू सी समवन ऑन बाइक, हम्म। इफ यू सी समवन साइकिल पे है, या वो किसी They're living the वी8 में, moment. they love to live the life, हाँ you know, and that's the beauty of Lahore. हाँ। बाइक वाले जो हमारे भाई हैं वो थोड़ा सा वो कोशिश करते हैं कि वो आपको कोई ना कोई टक्कर मार के, उनकी चेक लिस्ट होती है आज कितने, तो यार मेरा कोटा पूरा नहीं Yeah. हुआ तो। एंड लेकिन वो लाहौर में आपको एक टाइमलाइन भी नज़र आती है, आप अंदरून से शुरू करें और आप मॉडल टाउन और फिर आप आगे जाते जाए डीएचए की तरफ, सो यू विल सी अ होल टाइमलाइन, किस तरह वक्त के साथ साथ शहर चेंज हुआ। तो वो लाहौर की अपनी खूबसूरती है अपने आप में। but again, every era has its own या beauty, its own signature architecture and its own, या तो वो लेयर्स में आपको वो फ्लेवर बहुत बहुत मजा या करता है। फवाद रिसेंटली प्रोड्यूस्ड अ फिल्म नीलोफर, इफ यू आर अवेयर ऑफ दैट। तो फवाद ने बनाई है, एंड ही सेड के ही वांटेड टू मेन लाइक हाईलाइट द सर्दियों में जो लाहौर की एक वाइब होती है, वो एक नुक्कर में नान लग रहे होते हाँ हैं और चने। हाँ। सो ही ट्राइड कि वो उसको हाईलाइट कर सके लाहौर की वाइब को। लेट्स सी, लुकिंग फॉरवर्ड टू दैट। एंड ही डिड इट एज अ प्रोड्यूसर फॉर द फर्स्ट टाइम एज वेल, सो हाई होप्स एंड लुकिंग फॉरवर्ड टू दैट। So let's talk about films, if you want to. How you think कि अभी current industry कैसी है, and how you think अभी different तरह के films जो हैं वो cinema screens पे आए, कमलीज, जोयलैंड, मौला जट, so एक बहुत ही different scales के projects यहाँ पे screen हुए, and how you see in the future ये चीज़ें जो हैं वो किस तरह से, because obviously you are in an industry, लोग अब बनाना चाह रहे हैं, जैसे आपकी अपनी कुछ कोशिश है बनाने की। हाउ यू सी कैसा होने जा रहा है फिल्म इंडस्ट्री का फ्यूचर, एंड हाउ इज गोइंग ऑन सो फार? यार आई विल बी वेरी ऑनेस्ट,
मैं टिकट मैंने सारे पाकिस्तानी फिल्म्स के लिए हम्म, ताकि मैं कंट्रीब्यूट बिल्कुल। कर सकूं। मैं गया नहीं हूँ, अच्छा अच्छा। मैंने कोई भी नहीं देखी, ना आपने मोला सेट देखी? कुछ भी नहीं। ओहो। इवन इवन के वेरी एहसन भाई, एहसन रहीम, बिल्कुल। तो बड़े मेरे मोहसिन है वो, उनकी फिल्म थी वो थीफ एंड ट्रबल, और वो बिल्कुल। सारी टीम जो है वो हम बहुत क्लोजली, सबसे ज़्यादा काम क्लोजली किया हुआ है, वो भी नहीं देखी। अब तो वो नेटफ्लिक्स पे है शायद, यार आपको देखनी चाहिए। यार एहसन भाई जो है ना, उनको पता होना चाहिए कि उनके मैं बेली ने फिल्म नहीं देखी बट अभी तक। मैं आज ही देखता हूँ सर, आज ही देखता हूँ। लेकिन आई थिंक जो हमारा जिस तरह हमारा ड्रामा टीवी का और हमारा पॉप म्यूजिक वाज ऑलवेज मच बेटर देन इंडिया। ऑल्सो ये ना डालें, मैं आज तक मैंने इट जिंदगी, इज। नहीं नहीं, मैं आज तक ज़िंदगी में सिर्फ इंटेंशनली या होशो हवास में जागते हुए मैंने सिर्फ एक इंडियन फिल्म देखी। अच्छा, या बस एक। या ओके। आई कुडंट, मैं बच्चा था और वो फिल्म के अंदर वो गाने चल रहे, लंबी फिल्म, उसके अंदर लोग नाच रहे हैं, आई एम लाइक, इज इट लाइक यू आर नॉट फिल्मी पर्सन, या लाइक यू डोंट लाइक टू वॉच फिल्म, या बस इंडियंस नहीं देखी, यू वाज मोर इनटू हॉलीवुड? हाँ आई वाज मोर इनटू वेस्ट। माय फेवरेट चैनल फिल्म एशिया। मुझे अब पाकिस्तानी वो फिल्में जो है ना, वो नॉन स्टॉप मैं देखता हूँ। हम्म। द वो जो एक फेज हमारा है कमर्शियल सिनेमा वाला, वो घोड़ों वाला और गुजरों वाला। ओह, सो आई एम अ वेरी फिल्मी पर्सन। ओके। मेरे सारे सेंस ऑफ ह्यूमर सारा फिल्म वाला। लेकिन आई थिंक जिस तरह अब हमारा पॉप म्यूजिक और हमारे ड्रामा उनसे बहुत आगे थे, दिस न्यू वेव ऑफ फिल्म्स, फ्रॉम व्हाट आई सी, अगेन आई हैवंट सीन हम्म। द थिंग, लेकिन फ्रॉम जो उसकी जो अप्रोच है, आई थिंक इट विल ब्लूम एंड इट विल टेक द वर्ल्ड बाय स्टॉर्म। ओके। वो हम थोड़े से लेट हुए हैं उसमें, वो आने में। जिस तरह ईरान, आई थिंक दे स्टार्टेड मच अर्लियर, हम थोड़ा सा लेट हुए हैं, लेकिन आई थिंक जो कंटेंट निकलेगा वो, आई थिंक वील बी एट पार विद हम्म। जिस तरह फार ईस्ट का सिनेमा है, साउथ अमेरिका की कुछ चीज़ें आपको इस तरह, आई थिंक या। वो होगा। अच्छा, एक क्वेश्चन है वो, मेरी जनरेशन के या यंगस्टर्स हैं वो बड़े डार्क कंटेंट ओरिएंटेड है, हम्म, द लाइक डिप्रेसिव कंटेंट, उनकी स्टोरी में कहीं ना कहीं वो एलिमेंट मिलेगा। मैं ऑन द अदर हैंड शायद बहुत रेयर हूँ उनमें जिससे कलरफुल चीज़ें पसंद हैं, पॉजिटिव। आई ऑलवेज ट्राई टू मेक कंटेंट जिसमें आप उठ के जा रहे हो तो आप कुछ पॉजिटिव लेके गए हो, आप इंस्पायर हुए। हाउ यू सी दिस होल थिंग? व्हाट्स योर फ्लेवर? यार आई थिंक इट्स उनका उन वो इसलिए शायद वो कर हम्म। रहे होंगे बिकॉज इट्स इन द एयर। ओके। उनको I don't, there are two sides to हम्म। this coin. I think um, uh, बहुत सारे लोग जो ना बैठते हुए कहते हैं यार अब वो मज़े नहीं रहे, ओ यार अब वो हम्म। टाइम नहीं रहा, वो दुनिया में दैट्स रबिश। मैं एक जगह पे बैठा हुआ था, मैयत हुई थी, वो फिर वो एक साहब ने इस तरह की बात की, मैंने कहा कि यार सर, हम इस वक्त बड़े एक सैड सिनेरियो में इन्वायरमेंट। बैठे हुए हैं, लेकिन इन बच्चों को देख रहे हैं आप, वो पागलों की तरह गोली कभी उधर जा रहा है, कभी ये कर रहे हैं, वो खेल रहे हैं, वो सारा सब कुछ कर रहे हैं। यार हम उस वक्त हमारे ऊपर कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं थी यार, हम हम्म। बिल्स नहीं दे रहे थे, वो अब्बा दे रहे थे, वो सब कुछ काम वो होता, हम तो ऐश कर रहे थे। ठीक है, फोन का बिल आता है, क्या होता है क्या नहीं होता हमें क्या पता है था। तो जब आपको ये चीजें ना हो तो यू आर हैविंग एन अमेजिंग टाइम। The youngsters today are having an even more amazing time या। with all the access to so many things. लेकिन जब इनके ऊपर टाइम आएगा ये भी कहेंगे ओ यार, हाय मार हाय के हाय मटे, हाय हाँ। यार वो टाइम था यार। सो लेकिन having said that, I think my generation saw uh, so far the last golden age of Pakistan. Next inshallah start होगा।
सो दिस जनरेशन मेरे ख्याल में इन्होंने बहुत ज़्यादा वो डार्कनेस या जो एक नेगेटिविटी जो है वो एब्जॉर्ब कर ली है, और वो कहीं ना कहीं तो निकलेगी ना, बिल्कुल। तो वो इस एक्सप्रेशन में निकल आती है. हम्म। So I think when we add more positivity to the thing, I was telling um, पेशावर में ही एक साहब को सिर्फ पकड़ के बैठे हुए थे, तो मैंने कहा यार इस गिलास के अंदर आप पानी है और इसके अंदर आप मिट्टी डालेंगे, तो एक तरीका तो ये है कि पूरे का पूरा गिलास आप फेंक के आप उसको धो दें, जो कि परफॉर्मिंग आर्ट्स को जो हम स्टिग्मेटाइज करते हैं, मैं उसकी बात कर रहा था. मैंने कहा यार ये दूसरा तरीका ये होता है कि आप इसके अंदर पानी ऐड करना शुरू करें, तो आफ्टर अ वाइल दिस विल बैलेंस आउट एंड आपको एक नई वो मिल जाएगी. इफ यू आर नॉट encouraging educated young इस तरह की चीज in an industry, what do you expect क्या होगा? बिल्कुल। तो वो overall again as I said Pakistan has to add a lit उसको यार half the time क्या यार 80% of the time it's the communication. माहौल बनाओ ना यार, नीचे हो रहा होगा. The point of communication is to buy you time. कि जब तक आप यू गेट योर एक्ट टुगेदर, यू जस्ट टेल पीपल ठीक हो जाएगा, ये हो जाएगा, ये हो जाएगा, एंड उसी में क्या होता है कि यू हैव अ लॉट ऑफ पीपल हु एक्चुअली बाय दैट थिंग एंड दे टेक इनिशिएटिव्स. जो हमने टूरिज्म का एक हवा बना दी थी, टूरिज्म में भी बहुत टाइम है पाकिस्तान को करने में, लेकिन द गुड थिंग वाज कि उसमें एक स्ट्रेटजी बनी थी कि यार डोमेस्टिक टूरिज्म, लेकिन डोमेस्टिक टूरिज्म में भी एक रिस्पॉन्सिबल टूरिज्म होगी, एक रिस्पेक्टफुल टूरिज्म होगी. रिस्पॉन्सिबल टूरिज्म फॉर पीपल हु आर कमिंग इन, रिस्पेक्टफुल पीपल जिनकी जगहों पे लोग आ रहे हैं, उन सबको एजुकेट करना है. आप पाकिस्तान में हमने, अगर हम नॉर्थ को देखें तो हमने लिटरली पहाड़ तोड़ के हमने टूरिज्म के लिए रास्ता बनाना है, तो इसमें टाइम लगेगा. लेकिन टिल देन व्हाट यू डू इज यू डू प्रिपरेटरी वर्क. जब आप एनवायरनमेंट बनाते हैं, प्राइवेट सेक्टर स्टार्ट्स आस्किंग भैया टूरिज्म में क्या हो रहा है, भाई टूरिज्म में क्या हो रहा है, हम कहाँ इन्वेस्ट करें, योर half your thing is done, because investment has to come from the private sector. It has to come from बाहर से और इधर उधर. आपने माहौल बनाना है. हम पाकिस्तान में we lose on the communication front. वो ग्लोबल हमारा इमेज हो, इंटरनली हमारी आपस में बात हो, that is our weakest link. Makes sense. Any tips, any thing you would like to share with the young audience, with the young generation of Pakistan for listening to this? यार again as I said, सुबह उठें, टेक पानी में डालें और खोल के पी जाए. वट एवर यू डू, जो भी आपका प्रोफेशन है, जो कुछ भी आप कर रहे हैं, गेट रेडी फॉर उसके अंदर नो. और टेक का ये मतलब नहीं है कि आपको आप इंस्टाग्राम और उस तरह वो कर सकते हैं. हाउ डज द इंस्टाग्राम का एल्गोरिदम वर्क्स, या जो भी उसके पीछे जो भी मैजिक जादू जो है वो समझना है आपने कि यार ये कैसे होगा. उसके अंदर फिर आपको एक चीज मिलेगी एंड यू लाइक यार लेट मी प्ले विद दिस. लाइट जिस तरह एक आपको अगर पता है कि यार हाउ डज लाइट वर्क, आप एक ऐसी लाइट निकाल देते हैं जो क्रिएट्स दिस होल न्यू, या साउंड में आपको एक चीज पता चल जाती है, तो वो चीज होगी दैट विल गिव यू द एज. और आजकल अगेन एज आई सेड इट इज वेरी इजी. It is very easy. मतलब you've got direct access to the world as far as content and as far as getting noticed is concerned. Yeah. आपको नहीं ज़रूरत कि जी कोई आपको टीवी में पिक करेंगे तो आप उधर फीचर होंगे, आपके ऊपर न्यूज़ रिपोर्ट चलेगी तो आपके बारे में कोई बात होगी. नो. Makes sense. Well, thank you so much guys for this session. अगर आपके कोई भी कमेंट्स हों, कोई भी क्वेश्चंस हों या कुछ और टॉपिक्स पे आप चाहते हो हम बात करें, so please let us know in the comment section. Don't forget to like, subscribe and share as well. And we are looking forward to have you another for another session जिसमें हम लोग मज़ीद किसी और चीज़ के ऊपर बात करेंगे. अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा and thank you so much. Have a great day.